Standard 7, Subject Maths, Chapter 11, Parameter and Area. Open your textbook, page number 209. Triangle as part of rectangles. Take a rectangle of side 8 cm and 5 cm. यहाँ पे देखो, cut the rectangle along its diagonal to get 2 triangles. अगर बीच में से हम कट करें तो हमें 2 triangles मिलेंगे. Suppose one triangle on the other, are they exactly the same in size? Can you say that both the triangles are equal in area? क्या आप कह सकते हैं दोनों का एरिया इक्वल है? Are the triangle congruent also? What is the area of each of these triangles? You will find that sum of the area of the 2 triangles is the same as the area of the rectangle. Both the triangle are equal in area. The area of each triangle का फॉर्मूला क्या है? 1/2 मतलब हाफ. एरिया ऑफ द रेक्टेंगल का हाफ है. जो ट्राइंगल है वो क्या है? रेक्टेंगल का हाफ है. मतलब हाफ लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ. सो यहाँ पे 8 है और 2 है. सो 1/2 8 मल्टीप्लाई 5 8 5 ज़ा 40 40 डिवाइड 2 करोगे 20 सेंटीमीटर स्क्वायर. टेक अ स्क्वायर ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इंटू 4 ट्राइंगल्स एज सो. यहाँ पे देखो 11.8 में फिगर. आर द 4 ट्राइंगल्स इक्वल इन एरिया में इक्वल है? आर दे कॉन्ग्रेंट टू ईच अदर? वॉट इज द एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल? सो इसका क्या फॉर्मूला होगा? द एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल 1/4 एरिया ऑफ द स्क्वायर. एरिया ऑफ द स्क्वायर का 1/2 साइड का स्क्वायर, मतलब साइड मल्टीप्लाई साइड करते. सो 1/4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 5 5 ज़ा 25 डिवाइड 4 करोगे तो कितना आएगा? 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके. उसके बाद है जनरलाइजिंग फॉर अदर कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ रेक्टेंगल्स. अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 4 सेंटीमीटर इज डिवाइड इंटू 2 पार्ट्स एज सो इन फिगर 11.9 में देखो 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर को डिवाइड किया है. Trace the rectangle on other paper and cut off the rectangle along EF. EF है वो कट बीच में लाइन. See if they match. You may have to rotate them. Are they congruent? The 2 parts are congruent to each other. So the area of one part is equal to the area of the other part. Area of one part is equal to the other part. सो इसका फॉर्मूला क्या होता? द एरिया ऑफ ईच कॉन्ग्रेंट पार्ट 1/2 द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. 1/2 लेंथ है 6 ब्रेथ है 4 तो 6 4 ज़ा 24 24 डिवाइड 2 12 सेंटीमीटर स्क्वायर. ट्राई दिस वाला ही वो आपको करना है. एरिया ऑफ पैरालोग्राम. अब देखो वी कम across many shapes other than squares and rectangles. How will you find the area of a lane which is parallelogram in shape? Let us find a method to get the area of parallelogram. Can a parallelogram be converted into a rectangle of equal area? Draw a parallelogram on a graph paper as so in figure 11.10 में देखो. कट आउट द पैरालोग्राम. ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम वन वर्टेक्स. यहाँ पे सेकंड जो है 11.2 में 1 वर्टेक्स ड्रॉ किया है ऑफ द पैरालोग्राम परपेंडिकुलर टू द ऑपोजिट साइड. कट आउट द ट्राइंगल टू द अदर साइड ऑफ द पैरालोग्राम. वॉट शेप डू यू गेट? आपको कौन सा शेप मिला? यू गेट अ रेक्टेंगल. Is the area of parallelogram equal to the area of rectangle form? Yes, area of the parallelogram is equal to area of the rectangle form. Area of the parallelogram is equal to area of the rectangle form. What are the length and breadth of the rectangle? इसकी length and breadth क्या है? We find the length of the rectangle form is equal to the base of the parallelogram and the breadth of the rectangle is equal to the height of the parallelogram.
Now area of parallelogram is equal to area of rectangle is equal to length multiply breadth. Area of parallelogram is equal to area of rectangle is equal to length multiply breadth. But the length and breadth of the rectangle are exactly the base B and the height h. क्या होगा? Exactly the base B and height h respectively of the parallelogram. Thus the area of parallelogram is equal to क्या होगा? B मल्टीप्लाई एच. बी का मतलब है बेस मल्टीप्लाई हाइट, तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ? एरिया ऑफ पैरालोग्राम बेस मल्टीप्लाई हाइट. एनी साइड ऑफ अ पैरालोग्राम कैन बी चूजन एज बेस ऑफ द पैरालोग्राम. कोई भी साइड आप चूज करते हो, द परपेंडिकुलर ड्रॉप ऑन दैट साइड फ्रॉम द ऑपोजिट वर्टेक्स इज नो एज हाइट. यहाँ पे जो खड़ी हुई डी ई लाइन है वो है हाइट. इन द पैरालोग्राम ए बी सी डी, डी ई इज परपेंडिकुलर टू ए बी. डी ई परपेंडिकुलर टू ए बी. हियर ए बी इज द बेस. ए बी जो है वो बेस है. डी ई इज द हाइट, वो उसकी हाइट है. वो तो आपको पता चलेगा हाइट और बेस कौन सा लेना है. जो बेस में है वो बेस लेना है और जो हाइट है वो हाइट ऑफ द पैरालोग्राम. इन दिस पैरालोग्राम ए बी सी डी, डी बी एफ जो सेकंड वाली है इसमें बी एफ इज परपेंडिकुलर टू अपोजिट साइड ए डी. तो यहाँ पे ए डी है वो बेस है और बी एफ है वो हाइट है. ओके, कंसिडर द फॉलोइंग पैरालोग्राम 11.12. यहाँ पे फाइंड द एरिया ऑफ द पैरालोग्राम ऑफ काउंटिंग द स्क्वायर इनक्लोज विथ इन द फिगर एंड ऑल्सो फाइंड द पैरामीटर बाय मेजरिंग द साइड. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. देखो यहाँ पे फर्स्ट है पैरालोग्राम में बेस 5 यूनिट है. कितने यूनिट है बेस में? 5 यूनिट. और हाइट में है 3 यूनिट. तो एरिया क्या होगा? 5 3 इज 15 स्क्वायर यूनिट. एरिया तो इजी है. पैरामीटर कैसे फाइंड आउट करोगे? सो पैरामीटर में आप को करना है ए डी, आपको नाम दे देना है ए बी सी और डी, और डी एम है वो वर्टेक्स है. सो ए डी इज इक्वल टू डी एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर. ओके, सो डी एम स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर लेना है. 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर. ओके, सो 3 + 1, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 मतलब 10 आए. सो पैरामीटर क्या होगा इसका? 2. तो पैरामीटर 2 ए डी प्लस ए बी, सो 2 10 प्लस 5 यूनिट. ये इसका आ गया पैरामीटर. ओके, वैसे ही आपको सभी के एरिया और पैरामीटर फाइंड आउट करने हैं. उसके बाद कंसिडर द फॉलोइंग पैरालोग्राम विथ साइड 7 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर. यहाँ पे 11.13 फिगर में यहाँ पे बेस दिया है, साइड्स दी हुई है और साइड 7 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर है. फाइंड द पैरामीटर एंड एरिया ऑफ ईच ऑफ दिस पैरालोग्राम. एनालिसिस योर रिजल्ट. यू विल फाइंड दैट दिस पैरालोग्राम हैव डिफरेंट एरिया बट इक्वल पैरामीटर्स. To find the area of parallelogram, you need to know only the base and the corresponding height of the parallelogram. यहाँ भी आपको सभी के पैरालोग्राम की पैरामीटर और एरिया फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, सो ये आपको करना है. और एरिया ऑफ ट्राइंगल ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. ओके, थैंक यू.